Okay. So everyone over here, they know that area under the graph represents distance traveled. If you are in A levels, तो आपको कुछ basics पता होंगी that area of a velocity time graph represents the distance, right? Everyone knows what acceleration is. Acceleration is the rate of change of velocity. If they ask you for the definition or formula होगा तो ये. Can everyone see the screen please quickly? क्योंकि कभी कभी it happens. Can you see me writing A equals to V minus U upon T? Can you see it? Give me a thumbs up if you can, ताकि मैं फिर comfortably आगे बढ़ जाऊंगा. Lovely. अच्छा अब देखो, the rest of the equations of motion अब इसी में से निकलेगी and that will be it. Okay. Eventually once we learn this equation of motion, जब आप लोग आगे जाओगे तो बहुत एडवांस्ड जगहों पे यूज होता है, बट ऑब्वियसली हमें बेसिक्स पहले अच्छे समझने हैं. सो आई थिंक यू ऑल विल अग्री दैट let's say the distance is denoted by S. The distance is area under the graph. So this is a trapezium, right? Trapezium का एरिया मैं कैसे निकालूंगा? Half into sum of parallel sides. So एक parallel side over here is U, and the other parallel side over here, which is V, right? Multiplied by T. दो equations. Tell me if anyone has any doubts about these two equations, or give me a thumbs up कि आप लोग हाँ sir, we know this equation well. Give me a quick thumbs up if you are comfortable with these two equations. आपको ही पता थी. Quick thumbs up for everyone. Okay. Now I would want everyone to respond quickly as well. Okay. So if I cross multiply over here, this will become AT is equals to V minus U, or V is equals to, I can take the U over here and write it as U plus AT. And let me just write it down as my first equation. Okay. And let's say this is my second equation over here. Now what I can do is, and I can play around with the equation however I want depending on what information is given. So the second equation here, in this equation, if in place of V I write U plus AT. अब आप लोग, you can ask the question कि sir why? Well, because let's say assume के final velocity हमें नहीं पता, there will be cases, so we will be making equations जहाँ पे कभी final velocity नहीं होगी, कभी time नहीं होगा, कभी distance नहीं होगा. So depending on what information is given to us, we'll be using these equations. Okay. So I cross multiply, this becomes 2s is equals to 2u plus 80 times of t. I don't think this is difficult at all. So 2s is equals to 2ut plus 80 squared. और अगर मुझे s find करना है, so I will divide the whole equation by 2. I would prefer everyone if you just write it down along with me as well. Obviously recording मिल जाती, but still. So this distance is also given by the formula s is equals to ut plus half 80 squared. ठीक है? So this is one of the equations. अच्छा, one thing I did not mention, all of these equations shall be used if we are talking about constant acceleration. Just note it down somewhere. मैंने ऊपर कहीं mention नहीं करा. I really wanted to mention, but मैं पढ़ाना शुरू हो गया. So we are talking about motion where the acceleration is constant. Okay, and that is really important कि हम लोग constant acceleration से जब deal कर रहे होंगे, so these formulas will be used. Any problem so far over here? होगा तो आप लोग प्लीज मुझे बता सकते हो. ठीक है. Now even from this first equation, if I make, let's say, t my subject, okay, so t is equals to v minus u upon a. All right. And मैंने जो यही equation थी, मैं इसमें लिख देता हूँ s is equals to 1 upon 2 u plus v multiply by t की जगह मैंने लिख दिया v minus u upon a. Right. So this is multiplying 2a will multiply by s, right? तो ये 2as हो जाएगा. एंड मैथमेटिक्स अगेन ओवर हेयर v प्लस यू इंटू v माइनस यू. आपको याद आएगा दिस इज सिमिलर टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई. So when I expand this bracket, I will get v squared minus u squared. So I can simplify this equation and write it as v squared is equals to u squared plus 2as. And this is another
इक्वेशन ऑफ मोशन, बट इन दिस केस अगर टाइमिंग दिया हुआ तो हम ये यूज कर लेंगे. सो यू विल बी थिंकिंग कि सर व्हाई आर वी लाइक मूविंग अराउंड विद दीज वैल्यूज सो मच. बेसिकली डिफरेंट केसेस में डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस हिसाब से हम लोग जो है इक्वेशन यूज कर रहे होते हैं. एनी क्वेश्चन सो फार? गिव मी थम्स अप इफ यू आर लाइक फाइन, नो सर नो क्वेश्चंस, सब समझ में आ रहा है. क्विक थम्स अप. एंड आई वोंट टेक टू मच टाइम टुडे. ओके, मैं आप लोगों को एक आइडिया देना चाहता हूँ कि ए लेवल फिजिक्स में क्या क्या होता है. इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ यू हैव डन इट बिफोर, वेल, अच्छी बात है. बट आई जस्ट गिव यू अ क्विक आइडिया अबाउट क्या क्या होता है. तो एक तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने देख ली, ठीक है. उसके बाद आई हैव अटैच्ड अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. मैं उन क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा अभी, राइट. वी कैन डू फोकस ऑन दिस क्वेश्चंस लेटर ऑन वंस वी प्रॉपर्ली स्टार्ट. एंड दिस इज बेसिकली जो आता है मेन चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन. नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन इज अबाउट एनी ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन एट एन एंगल. जैसे कि हम बॉल थ्रो कर रहे हो, जो रॉकेट्स लॉन्च कर रहे होते हैं. यू कैन थिंक ऑफ मल्टीपल एग्जांपल्स जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जहां पे हमारा जो मोशन है वो यूं स्टार्ट होता है, सही है. हम उसको यूं थ्रो करते हैं, बट ऑब्वियसली उसका जो पाथ होता है वो ऐसा होता है, राइट. ठीक है. तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको हमें स्टडी करना होगा, एंड वी स्टडी इट. बाय द वे, जस्ट गिव मी अ रेज ऑफ हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव मैथ्स इन योर ए लेवल्स? आई नो Umar, you have. गिव मुझे चैट में बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव मैथ्स इन ए लेवल्स? यू डू, ओके. तो अगर आप लोग मैथ कर रहे हो तो मेनी ऑफ यू माइट बी टेकिंग M1 एज वेल, है ना. M1 भी ले रहे होगे, बाद में पढ़ोगे, नॉट राइट नाउ ऑब्वियसली, बट आप लोग शायद, आई थिंक यू विल स्टडी दैट इन जनवरी और दिसंबर. तो मोस्ट ऑफ द M1 सिलेबस वो आपके फिजिक्स से मैच कर रहा होगा. उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी, पावर, मोमेंटम, तो नियरली एवरीथिंग आपका कवर हो जाएगा थ्रू फिजिक्स. सो इफ यू हैव टेकन M1, दैट विल बी गुड फॉर यू. अच्छा, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी क्या करते हैं? और ये एक तो ऑब्वियसली इट इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी मिसाइल हो, कोई भी सैटेलाइट हो, कुछ भी हो, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है. और इस मोशन में इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है? इस मोशन में इंपॉर्टेंट ये होता है कि व्हाट वाज द मैक्सिमम हाइट दैट दिस प्रोजेक्टाइल कैन गो टू. ठीक है. तो एक तो ये मैक्सिमम हाइट हमें पता करना होता है. एक होता है टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल जब वो लैंड करेगा. ठीक है. हमें एक चीज ये फाइंड करनी होती है. इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, राइट. इवन आप लोग ये देखो कि अभी जो पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसमें लाइक दोनों साइड्स पे आइडिया होता था कि इतनी देर में मिसाइल पहुंचेगा. तो वो ऑब्वियसली थ्रू कैलकुलेशन, ये थोड़ी होता है कि वो सोचते हैं कि अगले 30 सेकंड में हिट कर जाएगा. मेरा दिल कह रहा है, दिल नहीं कह रहा बेटा. ऑब्वियसली कोई ना कोई कैलकुलेशन हुई होगी. ऐसा तो नहीं हो सकता कि बस कोई बंदा बैठे कि उठा के बोल दे कि मेरा दिल कह रहा है कि हम इसको यूं फायर करेंगे. जो भी डिफेंस चल रहा था, दो ऑफ एयर डिफेंसेस, ऑब्वियसली वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट्स आर डन ऑन बोथ साइड्स, राइट. ओके. तो एक तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, टोटल टाइम फॉर द प्रोजेक्टाइल क्या हो गया, प्लस अगर मैंने लेट से प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ए से फायर करा है, वो पॉइंट बी पे लैंड करेगा, तो ये कितना डिस्टेंस होगा. हम ये सब जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी करते हैं. ठीक है. तो आई गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे हम इसको यूज करेंगे. थोड़ा सा मैं आपको भी आइडिया दे देता हूँ, एंड देन होपफुली विल डू दैट इन मच मोर डिटेल फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. देखो, नाउ लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कोई चीज थी, बॉल थी या रॉकेट था विच इज बीइंग थ्रोन, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी में कह लेता हूँ, क्या ले लूँ उसको, यू कह लेता हूँ, सही है. इनिशियल वेलोसिटी यू थी, और इस एंगल थीटा पे आई थ्रो इट. नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉ इट सेपरेटली फॉर यू पीपल, कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, सही है, जिसकी डायरेक्शन होगी ऑब्वियसली, और उसको हमने जो है एंगल पे थ्रो करा.
Now, when I throw it at an angle, obviously it is moving in the vertical and the horizontal direction both. So it will have a vertical velocity. इसको हम कह लेते हैं uv, the vertical velocity. And basic trigonometry क्या कहती है? That sin theta is opposite, so which is uv upon u, right? तो जो ये vertical velocity है, uv vertical velocity कह लेता हूँ, that will be u sin theta, right? ठीक है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को यू एच कह रहा हूं, तो यू विल से सर दिस इज एडजेसेंट, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो आप लोग कहोगे सर cos थीटा इज एडजेसेंट व्हिच इज, एंड दिस इज यू, सो द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी u cos थीटा, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक थिंग जो आप लोग को पता होना चाहिए, कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल होता है, उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट इज गिवन एज u sin थीटा। u क्या है यहाँ पे? इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, सही है? इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, किस स्पीड से प्रोजेक्ट करा। तो वर्टिकल वेलोसिटी ऐसे आएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे आएगी, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, दिस इज वन ऑफ them. Now there's some assumptions जो हम लोग करते हैं इसमें, and that is important, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअल रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगेन मिसाइल्स की बात करें तो विंड किस डायरेक्शन में है, मिसाइल अगर हम थ्रो कर रहे हैं, हमें सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो ऑब्वियसली सैटेलाइट, मैं आप लोग को से एक्चुअली एक सवाल पूछता हूँ, हाउ डिड यू एवर थिंक कि जो सैटेलाइट्स होती हैं जिसके थ्रू हमारे फोन सिग्नल्स हो रहे हैं, कनेक्शन हो रहे हैं, हम लोग ये सब यूज करते हैं मोबाइल वगैरह, ये सैटेलाइट ऊपर कैसे जाती है? क्या मतलब वो जो सिर्फ रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं हवा में और उम्मीद करते हैं कि मतलब वो एक सही जगह पे जाके लैंड हो जाएगा? और आई एम प्रीटी श्योर यू विल से कि नो सर, इट इज ऑब्वियस दैट a lot of calculations are taken into place, taken into consideration the velocity of the wind, temperature, and all the other variables, which basically will bring us to algebra. Okay, so you all will agree ke um what was I saying? Yeah, that in real life, air resistance and everything is very important, but A level में हम लोग एक चीज assume करेंगे, and that is कि when a projectile is thrown, when it is going, मैं vertical velocity पहले डिस्कस कर लेता हूँ, कि when this is your vertical velocity, let's say uv, it will have an opposing force which is the gravitational or gravity, right, which is g in this case, right? However, हम assume ये करते हैं कि, and this is a very important assumption, that air resistance will be negligible, ठीक है? So we will assume negligible, 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 I don't know, स्पेलिंग आई होप ये करेक्ट है। सो हम अज्यूम ये करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशंस। अच्छा, विद एनी प्रोजेक्टाइल, आप कोई बॉल हवा में फेंको, कुछ भी चीज हवा में फेंको, आई थिंक दैट विल कम टू योर माइंड कि when I throw something in the air at the highest point, do you all agree कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी या स्पीड जीरो होती होगी? yes or no? like give me a thumbs up or yes in the chat के उस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती होगी, राइट? यस? कोई शक उस चीज में आप लोगों को? कोई डाउट इस बारे में नहीं है ना? तो इसी तरह जब कोई भी प्रोजेक्टाइल जाता है, तो जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, तो हम अज्यूम ये करते हैं कि इस पॉइंट पर जो है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी विच इज यू वी, दैट बिकम्स जीरो, ठीक है? इनिशियल तो क्या है, वो यू साइन थीटा है, और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस पर ये हो जाती है जीरो। डू वी ऑल नो दैट एक्सेलरेशन एट ऑल पॉइंट्स, अच्छा चलो आप लोग एक चीज पूछ सकता हूँ, जब कोई चीज ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, और क्यों? चैट में लिखो विदाउट सर्चिंग एनीवेयर, कि कोई चीज अगर इफ समथिंग इज मूविंग अपवर्ड्स, so for it the gravitational acceleration will be written as positive or negative, and whatever the answer is why, so give me a quick answer in the chat, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर स्टूडेंट्स उसको कंफ्यूज कर जाते हैं।
So I would want quick answer के क्यों और कैसे. नेगेटिव बिकॉज ऑफ एंटी ग्रेविटी. एक्सीलेंट बेटा, जिसने भी लिखा है ये उमर, वेरी नाइस, गुड आंसर. हम एंटी ग्रेविटी कह लें या भी कह लें कि वो डिसेलरेट करेगा, कोई भी चीज को ऊपर भेजो तो उस केस में हम एक्सेलरेशन को माइनस जी को लेते हैं, इन दैट केस -9.81, बिकॉज इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग, राइट. तो वी नो दैट द फाइनल वेलोसिटी जो भी होती है वो जीरो हो जाती है. इनिशियल जो है दैट वाज यू साइन थीटा. वी नो दैट द एक्सेलरेशन इज -9.81. कैन समवन टेल मी विच इक्वेशन, मुझे चैट में या मुझे माइक पे बता दो. एंड लिसन एवरीवन, अनमोल, हफ्सा, हावरा, जूम यूजर, आई डोंट नो हु इट इज, सुखरुफ. देखो, इफ यू आर हियर एंड यू आर स्पेंडिंग सम टाइम, ठीक है, तो it is your important time as well, right? Maybe you won't be coming to the next class, maybe you'll be going somewhere else, completely fine. But if you're here, I would want you, Manya as well over here, कि थोड़ा सा आप लोग इन्वॉल्व रहिएगा. फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग, बट इफ द student is also, trying to question, मुझसे आप लोग पूछोगे, you will put me to test as well कि sir, but why is this, why is that, ऐसा क्यों होता है. Sometimes I will have to think, I need time, I will have to research on it and then give you an answer. But इस तरह आपको फिजिक्स अच्छी समझ में आएगी. तो मैं, अगर माइंड ना करो तो, हावड़ा, हाउ कैन यू हेयर मी? Hi Havra, you want to answer? It's okay if you don't want to answer, you can just say no, sir. Okay, Havra, which of the equations of motion will I use over here to find, let's say, the time? Basically, the this is the time to reach the highest position, right? So projectile was going up. At this point, it was at the highest position, so the velocity is zero. This is u. Which of these equations, all the equations that we learned, which equation will you use to find the time? You can just write it down in the chat quickly. It is so simple. Anyone, put your answer. जिसको भी आता है, you can put your answer. Okay. In the chat आप लोग आंसर लिख सकते हो. But चलो, I will cut it short. If you look into your equations, you will see the equation which is v is equals to u plus at, right? We have v, we have u, we have a. We can find the time it takes to go up, which means we'll also be able to find the time which it takes to come down, because both of these will be equal, right? So if we just multiply this by 2, we will get the time for the total projectile. Excellent, अफसा. ठीक है, तो एक हमारे पास ये आता है टोटल टाइम जो मैं बात कर रहा था. ठीक है. अच्छा, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेट्स से इसको h कह लेते हैं. इसकी जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती हैं वो अभी हमें जरूरत नहीं समझने की. मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है ना, दैट इज u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय, मैं टाइम लिख देता हूँ, एंड दिस टाइम इज टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ओके, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, सो द डिस्टेंस इज गिवन बाय, दिस एज इज गिवन बाय स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम, वो ऐसे आ जाता है. एंड इफ आई आस्क यू बेटा व्हाट इज द हाइट, मैक्सिमम हाइट, इसको h स्मॉल h से लिख लेता हूं मैं. तो अगेन वी कैन यूज एनी ऑफ द इक्वेशंस दैट वी हैव. मैं आपको ऐसे कहता हूँ, हाँ, कैन I will be able to use s is equals to ut plus half at squared as well, because if I have this time, I have the initial velocity, I have the acceleration which is -9.81, I will be able to find the maximum height it reaches as well. Are we people clear so far? Give me a quick thumbs up if you, all of you are clear. Okay, listen everyone. देखो, with every chapter, this is what will happen. I will explain a couple of things, and then every question जो आप लोग ए लेवल के एग्जाम में आएंगे,
they will be revolving around whatever you have learned. तो जो हमने ऊपर इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी करी है ना, ये आपने पहले भी पढ़ी होंगी, एवरी सिंगल थिंग दैट यू विल बी डूइंग ओवर हियर वो उन इक्वेशंस को यूज करके ही हो रही होंगी, कुछ अलग नहीं हो रहा होगा। इवन ये जो हमने यू साइन थीटा यू कॉस थीटा लिखा है तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, राइट? बट जो हमें एक्चुअल चीजें यूज करनी है वो ये है। तो आप लोग दिमाग में ये रखिएगा कि व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस, सो यू ओनली हैव दिस 3-4 इक्वेशंस जो आपको दी भी होती हैं। आई थिंक आपके मैथ के फॉर्मूला शीट में भी दी होती है, फिजिक्स की फॉर्मूला शीट में भी दी हुई होती है। Point is कि everything will be in front of you, we'll just have to know how to use it. And to end, मैं क्लास यहाँ पे एंड करने से पहले आप सबके लिए एक मैसेज है बेटा, and very important, so I would want you to listen, okay? Doesn't matter beta if you carry on with these classes or you do not, let me just stop the recording, I don't care.